Hello, dear learners. Hope you are doing well. So, the exam is just about a week, and there is immense pressure of everything. So, for that, here comes the paper of December 2023. Yes, the last paper which was the nearest to our exam, December 2023, and the paper will be of shift 2. And yes, one more thing. Everything will be very perfect if you have done proper revision. Just do the revision quite wisely, quite patiently. No haphazardness, nothing, just perfect revision, and the things will go better and better. Also, we will be uploading few videos on the revision of history paper only from tomorrow, that is from 11th June. So stay tuned for that. And the Telegram channel link is in description. If you have any doubts, any concerns, do let me know in the channel. There is a comment section, do comment in it. I will personally contact you. Okay, now without wasting much time, let's get started. So here the paper is of 6th December 2023, shift 2. Okay, so very first question, the play Neeladarpan was authored by. We know Neeladarpan is associated with the Indigo Revolution. So it is of Deenabandhu Mitra, option 4. Okay, it is written in 1860. कब लिखा हुआ है? 1860 में लिखा हुआ है by दीनबंधु मित्रा. द इंडिगो मिरर, नील दर्पण का मतलब क्या होता है? द इंडिगो मिरर इज द इंडियन ड्रामा एंड लिटरेचर. ओके, बेसिकली इट इज़ लाइक क्रिटिक ऑन द ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, जो कि इंडिगो फार्मर्स के ऊपर जो टॉर्चर वगैरह करते थे उसके बारे में इसमें दिया हुआ है. ठीक है, 1859-60 में जो भी रिवोल्ट हुआ था इंडिगो का, it is based on that. Next question. So, question number 2. Which one of the following duties of the Brahmana is incorrect as enumerated by Kautilya in his Arthashastra? So, which is not the duty? It is option 4. Bhutarakshana, protection of living beings. ये ड्यूटी किसकी होती है? क्षत्रिय की या फिर किंग की होती है, नॉट ब्राह्मण. ब्राह्मण इज अद्यपना, टीचिंग, प्रतिग्रह, एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, दान, मेकिंग गिफ्ट्स. ये तीनों भी ब्राह्मण की ड्यूटी है. बट भूतरक्षण, दैट इज प्रोटेक्टिंग, it is not the duty of Brahman, it is the duty of the king. Okay, very specifically it मतलब कि क्षत्रिय जो क्लास होती है वॉरियर की, उनकी ड्यूटी होती है भूतरक्षण, प्रोटेक्शन की. इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर रीजनिंग. सो असर्शन में क्या आएगा? लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू ओनली ब्राह्मण्स. टू ओनली ब्राह्मण्स, सच ग्रांट्स आर नॉट बेस्ड on caste, even barbers were given during Vijayanagar kingdom's rule. So अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. लैंड ग्रांट से ब्राह्मण को दिए जाते थे, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ओके, लैंड ग्रांट्स जैसे कि ब्रह्मदया, अग्रहारा एंड अदर टर्म्स जो दिए गए थे, तो ये ब्राह्मण्स को दिए जाते थे, बट टू रेंज ऑफ बेनिफिशियरीज इंक्लूडिंग टेम्पल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड वेरियस डिफरेंट कम्युनिटीज. ओके, एंड व्हाट इज द रीज़न कि जो ग्रांट्स थे वो विजयनगर के टाइम पर बार्बर्स को भी दिए जाते थे, तो वो कास्ट बेस्ड नहीं थे. ओके, ए रॉन्ग है बट आर है. जो अगर ए कंप्लीट स्टेटमेंट रहता था, जैसे ब्राह्मण्स, फिर बेनिफिशियरीज, टेम्पल्स, कम्युनिटीज़ अलग अलग उन्हें दिया जाता था, तो हमारा जो रीज़न और असर्शन है वो दोनों करेक्ट रहते थे, ए आंसर आता था. बट यहाँ सिर्फ ओनली ब्राह्मण्स बोला है, इसीलिए अगर ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ ट्रू. ओके, बाय द वे जो लैंड ग्रांट्स थे उन्हें कुछ नाम दिए जाते थे, जैसे कि इनाम, ब्रह्मदया, देवयाना, मथा, अग्रहारा. ओके, ये सारे जो ग्रांट्स दिए जाते थे उन्हें नेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. कलमुखा इज अ सेक्ट ऑफ, कलमुखा इज अ सेक्ट ऑफ, इट इज अ सेक्ट ऑफ शैविज्म. ऑप्शन 2 शैविज्म का सेक्ट है. ओके, कलमुखा वेर अ सेक्ट ऑफ शैविज्म जो 10th से 12th सेंचुरी. The Kalmukhas were closely connected with the Shaiva Siddhanta tradition and were known for their austere practices. They maintained monastic institutions in South India, okay, and were significant in the development and spread of Veerashaiva philosophy and Lingayatism. ठीक है, Lingayatism से associated है also with the Veerashaiva philosophy. Therefore, they are associated with Shaivism. Kalmukha. Okay. Now next question. Statement है, though Guru Nanak was an eyewitness of the general massacre and the treatment meted out to the people by Babur when he invades India in 1521. The Mughal emperors were conscious of the growing importance of the Sikh Gurus and tried to engage them in order to influence and, if possible, to control them. So, correct statement is option 1. That is, both the statements are correct. Okay, Guru Nanak was contemporary to Babur. So, जब बाबर इंडिया आते हैं, he has seen that how he treated the people, how he led the massacre. So, Guru Nanak was eyewitness for it in 1521. Therefore,
and he was really, जो गुरु नानक देव जी है, he was really disturbed by the violence, suffering and mistreatment he witnessed upon the people. Okay, and therefore it has a significant impact on his teachings also, in which he has written a set of verses known as बाबर वानी. गुरु ग्रंथ साहिब में है ये जो हॉली स्क्रिप्चर है सिखिज्म का, उसमें बाबर वानी है जिसमें उन्होंने उनका ये एक्सपीरियंस भी बताया है, एंड ऑल्सो ही क्रिटिसाइज्ड बाबर. ओके, एंड देन ऑप्शन 2, स्टेटमेंट 2, मुगल एम्परर्स वर कॉन्शियस ऑफ द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सिख गुरुज एंड ट्राइड टू एंगेज देम इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस. ओके, वो कॉन्शियस थे कि अभी सिखिज्म स्प्रेड हो रहा है एज इट वॉज गेनिंग फॉलोअर्स एंड इट वॉज ऑल्सो स्प्रेडिंग वाइड. तो जो मुगल एम्परर्स थे दे वर ट्राइंग टू मिक्स अप विद देम. ओके, there was a mixture of cordial relations, political negotiations and at times violent confrontations also. Guru Arjan Dev Ji जो 5th गुरु थे was executed on the orders of Jahangir and Guru Tegh Bahadur was executed by औरंगजेब. ये 2 पॉइंट्स भी ध्यान में रखो कि जहांगीर ने किसे मारने का ऑर्डर किया था? गुरु अर्जन देव जी. एंड गुरु तेग बहादुर वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. Who defeated निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन द बैटल ऑफ पलखेड़? बैटल ऑफ पलखेड़ 1728 में होता है नियर गोदावरी, महाराष्ट्र. नगर डिस्ट्रिक्ट है अहमदनगर, अहिल्याबाई नगर विच इज नाउ नोन एज, वहाँ पर होता है. ओके, एंड इट वॉज बिटवीन पेशवा बाजीराव वन जो 1740 तक थे. 1720 से लेकर 1740 तक उन्होंने रूल किया था. 20 years ही वॉज पेशवा एंड ड्यूरिंग हिज टाइम देयर वर क्वाइट अ फ्यू बैटल्स विथ निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास विच वर लेड बाय पेशवा बाजीराव वन. ओके, so the battle of Palkhed जो February 28, 1728 near the Godavari river in Maharashtra and Marathas were victorious. Okay, मराठास की जीत हुई थी ये बैटल के टाइम पर. नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यूमिनेस्टिक्स द स्टडी ऑफ कॉइन्स एक्सप्लेन्स अबाउट इकोनॉमी ऑफ द टाइम, कॉइन डिनोमिनेशंस, मेटल्स इन यूज एंड पोर्ट्रेट्स ऑफ द रूलर्स. वुड इंडस्ट्री क्यों बताएगा ना, वुड के थोड़ी ना बने होते थे कॉइन्स. मेटल्स, उनके ऊपर जो डिनोमिनेशन है दैट इज द वैल्यू, कौन सा मेटल यूज होता है, व्हाट वाज द इकोनॉमी ऑफ दैट पीरियड, एंड ऑन मेनी कॉइन्स देयर आर पोर्ट्रेट ऑफ रूलर्स. जैसे कि वी नो वेरी फेमस पोर्ट्रेट ऑफ वीना प्लेइंग समुद्रगुप्त. ओके, वैसे ही पोर्ट्रेट्स होते थे. सो देयरफॉर वी नो 4 थिंग्स: इकोनॉमी, कॉइन डिनोमिनेशन, मेटल्स इन यूज एंड पोर्ट्रेट्स ऑफ द रूलर थ्रू द न्यूमिनेस्टिक्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Write the following in the chronological order. Okay, we have to chronologically arrange the things. Our correct answer is option 1. सबसे पहले तो अलेक्जेंडर डिफीटेड डेरियस III एंड बर्न्ड हिज कैपिटल परसेपोलिस. ओके, ये सबसे पहले आता है 331 BC. फाइट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस. उसके बाद में अलेक्जेंडर जब इंडिया आते हैं, इनफैक्ट इंडिया आती ही नहीं है, वो बॉर्डर पर ही पोरस के साथ में उनकी बैटल होता है, बैटल ऑफ हेडाप्सिस 326 BC. ओके, बैटल ऑफ हेडाप्सिस. Then comes coronation of Ashoka the Mauryan king. It is somewhat 268 BC. Okay, 268. Then assassination of Brihadrat the last Mauryan king. अभी यहाँ पर we can understand कि A के बाद में ही C आएगा. Okay, A के बाद में ही C आएगा and almost हर इसमें A के बाद में ही C दिया है, इसीलिए इस पर से तो आपको कंक्लूजन नहीं निकालते आएगा. बट स्टिल अलेक्जेंडर सबसे पहले उन्होंने डेरियस III को डिफीट किया था एंड कैपिटल परसेपोलिस को भी जला दिया था. Then he came to India and there was battle of Edapsus in 326 BC. And then coronation of Ashoka, assassination of Brihadrat in 185 BC by Pushyamitra Shunga. Okay, and then Yuchi tribe were defeated and expelled from the Chinese Turkestan in 162. ये 162 BC में हुआ इवेंट है. Okay, so it is very easy if you know only 2-3 things. जैसे कि अलेक्जेंडर वाला, उन्होंने पहले डेरियस III को डिफीट किया, देन अलेक्जेंडर पोरस, देन कोरोनेशन ऑफ अशोका. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर, ऐसा बोला जाता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. द कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग इज ऑल्सो नोन एज पटना स्कूल. ओके, पटना स्कूल नोन एज पटना कलम. दिस स्कूल इज मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ द कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग. द आर्टिस्ट अडेप्टेड ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग टेक्निक्स टू रिफ्लेक्ट यूरोपियन टेस्ट एंड उन्होंने रियलिस्टिक डिपिक्शंस करना स्टार्ट किया था ऑफ एवरीडे लाइफ, इवेंट्स, ट्रेड्स एंड कल्चर ऑन पेपर पर ये पेंटिंग होती थी. ओके, कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो ब्रिटिश टाइम पर इमर्ज होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर. द स्टाइल इज ब्लेंडेड ट्रेडिशनली इंडियन आर्ट फॉर्म्स विथ यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस टू कैटर द टेस्ट ऑफ ब्रिटिश पैट्रॉन्स, बेसिकली ब्रिटिशर्स के लिए. एंड इट हैज इंडियन डेली लाइफ, लैंडस्केप्स, फ्लोरा एंड फोना. ओके, देन दिल्ली स्कूल क्या है, जो मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स थे उन्हें दिल्ली स्कूल बोला जाता था. मद्रास स्कूल रीजनल स्टाइल था, नो डायरेक्ट लिंक विद कंपनी. एंड यूरोपियन स्कूल इज
refers broadly to the Western art and style techniques. Okay. Next question. In India, Varna Ashram Dharma denotes importance of, it is option 3. So intellectual ability, power to protect the new kings of society, importance of trade and commerce, necessity of toilers and workers, encourages caste system. जो ये wrong है. Okay, बाकी के जो सारे statements है ये correct है. These 4 statements are correct. वर्ण आश्रम धर्म ये हिंदुइज्म में आता है कंसेप्ट, जिसमें ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी इंडिविजुअल आर टॉट और लेड डाउन. सो वर्ण यानी कि कास्ट और क्लास, एंड आश्रम स्टेज ऑफ लाइफ, एंड इट हैज 4 इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, दैट इज ब्राह्मण वर्ण, देन पावर टू प्रोटेक्ट क्षत्रिय वर्ण, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वैश्य वर्ण, एंड नेसेसिटी ऑफ टॉयलर्स एंड वर्कर्स शूद्र वर्ण. ठीक है. एंकरेजेस कास्ट सिस्टम ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. इट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, दो इट इज बेस्ड ऑन द वर्ण, बट इट डज नॉट एंकरेज डायरेक्टली द कास्ट सिस्टम. ये वर्क के बेसिस पर जो डिवीजन हुआ है उसके ऊपर बेस्ड है. ठीक है. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड यर शूद्र. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग्स द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट पीटर ड्यूरिंग द अर्ली कॉलोनियल रूल? इट इज बिहार. ऑप्शन 1 बिहार. ओके. बिहार में मिलता था. Compared to other regions, Bihar possessed naturally richer deposits of potassium nitrate, the key ingredient of saltpeter. Okay, 80% purity वाला वहाँ पर मिलता था. And Bihar's location on Ganga enabled efficient transportation to Hooghly. जो पोर्ट था हुगली, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ईजी जाता था थ्रू द रिवर गंगा. देन ब्रिटिशर्स ने काफ़ी अर्ली रिकोगनाइज कर लिया था कि यहाँ की वैरायटी, यहाँ का जो भी सॉल्ट पीटर है, जो पोटेशियम नाइट्रेट है उससे, एंड दे एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज एंड ट्रेड नेटवर्क्स इन द रीजन. ओके. सो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रिवील ओवरवेलमिंग डोमिनेंस ऑफ बिहार इन सॉल्ट पीटर प्रोडक्शन एंड बिकेम सिनोनिमस विथ हाई क्वालिटी सॉल्ट पीटर. सो देयरफॉर इट स्टैंड्स आउट एज द मोस्ट क्रूशियल वन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिंदू कॉलोनीज आउटसाइड इंडिया आर द एफर्ट्स ऑफ, our correct answer is option 4, that is the efforts of Pallavas, Cholas, Vijayanagar rulers and लास्ट में मौर्यस. खिलजी थे क्या? नो, खिलजी नेवर एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया देयर कॉलोनीज. पल्लवास उन्होंने ट्राई किया था विद साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग द मैरीटाइम ट्रेड एक्टिविटीज. ओके. देयरफॉर देयर इज म्यूचुअल इन्फ्लुएंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ हिंदू कल्चर. चोलास ऑल्सो डिड द सेम. मैरीटाइम सुप्रीमेसी ऑफ चोलास, जिससे उन्होंने इंडोनेशिया, मालदीव्स यहाँ पर उनकी कॉलोनीज एस्टैब्लिश की थी एंड हिंदू सिविलाइजेशन एंड कल्चर स्प्रेड हुआ था. विजयनगर के टाइम पर भी सेम एक्टिव ट्रेड एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन था विद साउथ ईस्ट एशिया. एंड लास्ट में मौर्यस. वी नो मौर्यस जो हमारे अशोका थे, उन्होंने बुद्धिज्म स्प्रेड किया था एंड विद द हेल्प ऑफ हिज सन एंड डॉटर. ओके. एंड अदर धर्म महात्मास. बुद्धिज्म was spread. Khiljis did not work towards the establishment of Hindu colonies. Why they will work towards the establishment of Hindu colonies? Okay. Now next question. Question number 13. Match list 1 and list 2. So पहला है हमारा तो ऑप्शन 1 है करेक्ट आंसर. ये साइट्स है एंड उन्हें उनसे एसोसिएटेड प्लेसेस भी है. सो कालीबंगन, इट इज़ अ इंदस वैली साइट. कालीबंगन वी ऑल नो राजस्थान में है. तिरुपति श्री वेंकटेश्वरा टेम्पल पिलग्रिमेज इन आंध्र प्रदेश. जम्मू कश्मीर मारकंड टेम्पल 4. एंड गुजरात लोथल जो आईबी साइट है, आईबीसी साइट है. ओके. सो दिस इज वॉट करेक्ट. नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. सोहागारो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स अबाउट ऑप्शन 4 A, B, C and D. That is मथुरा, चान्हू, मानवसी जंक्शन एंड स्टोर हाउसेज ऑफ फूड ग्रेन्स. तो ये सोहगारो जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड टू बी बिलीव्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ मौर्य, मतलब मौर्य टाइम से एसोसिएटेड है. इट वॉज फाउंड इन यूपी. सोहगारो अ प्लेस इन यूपी एंड इट इज रिटन इन प्रकृत एंड द स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी. ओके. स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी and describes instructions related to the disaster management and store houses of food grains. मतलब कुछ famine, flood, कुछ भी आता है. So in this Sohagaro copper plate inscription there are instructions related to management of the disaster. Okay. It primarily concerns with the storehouse of food grains. Manavsi Junction, location where 2 granaries mentioned in the inscription were established. ये एक place है जहाँ पर यहाँ पर 2 junction 2 granaries थे, 2 granaries present थे मानवसी जंक्शन. ओके. देन मथुरा
वन ऑफ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ कमोडिटीज स्टोर इन द ग्रैनरीज, मतलब कि जो ये ग्रैनरीज है यहाँ पर सामान कहाँ से आ रहा था, मथुरा से सामान आ रहा था. सो देन it therefore Mathura doesn't appear to be directly associated with the information, but for the food grain it was associated. Then Chanu similar to Mathura, यहाँ से भी हमें food grains मिलते हैं. Okay. Next question. Question number 15. Who founded the Swadesh Bandhav Samiti at Barisal during the Swadeshi movement? अश्विनी कुमार दत्त. Option 3. अश्विनी कुमार दत्त ने फाउंड किया था स्वदेश बांधव समिति, विच इज ऑल्सो नोन एज Society of Friends of the Country. Society of the Friends of the Country. Okay, by Ashwini Kumar Dutt. It was established in Barisal, which is in Bangladesh now. पहले भी बंगाल एक ही था ना, बट आफ्टर डिवीजन वो बांग्लादेश हो गया, एंड बांग्लादेश में ये साइट प्रेजेंट है, बरिसाल. सो द स्वदेशी मूवमेंट वॉज अ सिग्निफिकेंट स्टेज इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, एंड द पीरियड वॉज मार्क्ड बाय सेल्फ सफिशियंसी एंड प्रेफरेंस फॉर इंडिजीनियस गुड्स ओवर ब्रिटिश, मतलब कि स्वदेशी, घर का अपना. सो अश्विनी कुमार दत्त जो एजुकेशनिस्ट थे एंड ही वॉज ऑल्सो सोशल वर्कर, उन्होंने स्टार्ट किया था to empower the local population and to participate in the Swadeshi movement. So he spread to aim the spirit of nationalism and self-sufficiency, and for that he established Swadesh Bandhav Samiti as a cornerstone of Swadeshi movement. Okay, for spreading nationalism and notion of self-help or Swadeshi. Next question. Which Rajput ruler held the highest mansab under Akbar? It is option 4, Kuwar Man Singh. कुंवर मान सिंह ऑफ आमेर, इन्होंने सबसे हाईएस्ट पोजीशन होल्ड की थी. सो बेसिकली ये सारे जितने भी पॉइंट्स है ना, इसमें से मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आपको आपके बेसिक बुक्स में भी मिल जाएंगे. येस, द बुक विच आई हैव शोन, दैट मेडिवल हिस्ट्री बुक, इन दैट देयर इज प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट अकबर, एंड इन दैट देयर इज गिवन अबाउट कुंवर मान सिंह ऑफ आमेर. ओके, मान सिंह, अ प्रोमिनेंट राजपूत नोबल इन अकबर्स कोर्ट एंड ट्रस्टेड जनरल. ही हेल्ड द मनसब ऑफ 7,000. ओके, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जिसे माना जाता था, एंड ही प्लेड अ वाइटल रोल इन अकबर्स मिलिट्री कैंपेन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, राय सिंह ऑफ बीकानेर, ये भी अकबर के नोटेबल रूलर्स में आते हैं, राजपूत रूलर्स में, बट ही डिड नॉट होल्ड द हाईएस्ट मनसब. राजा मान सिंह ऑफ जोधपुर, ही वॉज ऑल्सो अ राजपूत नोबल एंड ही हेल्ड अ मनसब बट नॉट हाईएस्ट. महाराव सुरजन सिंह बेदी ऑफ बूंदी, दो ही वॉज लॉयल to Akbar, but yet he didn't hold the highest position. Next question. Arrange the following in chronological order. Question number 17. So correct answer is option 4. सबसे पहले होता है डेथ ऑफ रानी दुर्गावती. ओके, गोंदवाना से प्रेजेंट, गोंदवाना में थी ये, एंड शी डाइड इन 1564. देन कंप्लीशन ऑफ हुमायूंस मैज़ोलियम एट दिल्ली. ऑप्शन बी, ये कब होता है? 1572. जो हुमायूं की टॉम थी 1572 में कंप्लीट होती है. देन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इज फॉट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड मुगल आर्मी 1576. एक बैटल नहीं होता है, बट येट मुगल आर्मी लेड बाय राजा मान सिंह. पोर्चुगीज विसरॉय सेंट्स एंटोनियो कैब्रल एज एन एम्बेसडर टू अकबर्स कोर्ट इन 1580. ओके, एंड डेथ ऑफ राजा तोदरमल इन 1589. Note down the dates properly. Okay, next question. Who amongst the following wrote a biography of Mazzini? V.D. Savarkar. विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने लिखी है बायोग्राफी ऑफ Mazzini, who was an influential Italian political activist and fervent advocate of unification of Italy. Okay, he was from Italy, a very famous political activist, and Savarkar himself was a prominent political activist. तो सावरकर काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे उनसे, एंड देयरफॉर ही रोट बायोग्राफी ऑफ Mazzini एज ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क्स एंड आइडियल्स. सो ये कब लिखा था उन्होंने? जब वो सेलुलर जेल में थे अंडमान में, तब उन्होंने लिखा था. ही आर्टिकुलेटेड Mazzini's आइडियाज एंड थियरीज ड्रॉइंग पैरेलल्स टू इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. ओके, रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था, एंड उसी के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उन्होंने लिखा था अमंग द यूथ. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद एनएल स्कूल ऑफ historian? Option 1, Lucien Febvre. We have seen about him so many times in the MS Set series also. Lucien Febvre was a foundational figure and co-founder of NL School. किसके साथ में? Mark Bloch. Okay, he was associated with NL School of History and okay, हाँ, in 1929. Yes, 1929 में established हुई ये स्कूल. So it is
It is very famous school of history. Okay, shifting away from political and military history towards a broader focus on social, economic and cultural aspects. क्या था इसका focus? Social, economic and cultural aspects and incorporated insights from geography, anthropology and other fields. Okay, next question. And yes, उनके बुक्स का नाम क्या है? रबी लियास. Note down the books of Lewis and Faber. Comic culture and comic culture of the Renaissance. Okay, and one more, a new kind of history. ये सारे बुक्स है ऑफ ल्यूस एंड फेबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. सबसे पहले आते हैं कैम्पबेल कमीशन विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1865-66. ओके, a famine influenced Odisha, Bihar and Bengal, and basically it was a famine commission. Okay, इससे और एक नाम क्या है? ओडिशा फेमाइन. ओडिशा कमीशन भी बोला जाता है, ओडिशा फेमाइन कमीशन, बिकॉज इट वॉज मोस्ट सीवियर इन द ओडिशा. ओके, then comes the Strachey commission 1876. it is also famine commission 1876, 77, 78. okay, the affected areas were मद्रास, बॉम्बे, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब. एंड गवर्नमेंट का जो हेड थे वो थे लॉर्ड लिटन. उन्होंने एस्टैब्लिश की थी, अपॉइंट की थी अंडर रिचर्ड स्ट्रैचे अ कमीशन टू फॉर्मुलेट जनरल प्रिंसिपल्स एंड सजेस्ट मेजर्स ऑफ प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव कैरेक्टर. हंटर कमीशन 1882. हंटर कमीशन कम्स इन 1882 बाय विलियम हंटर. हेड कौन थे? प्रेसिडेंट बाय विलियम हंटर. एंड हु वाज विसरॉय? लॉर्ड रिपन. देन कम्स लेलल कमीशन 1896, 97. okay, Sir James Lelel, and it was also famine commission. then McDonald commission लास्ट में आते हैं कर्जन के टाइम पर 1900 लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड अ famine commission led by McDonald in, and रिपोर्ट कब आती है? 1901 में. so it was also based on the relief measures for the famine. okay, next question. sorry yes, basically वो कैटल्स वगैरह को सुधारने के लिए ड्यू टू द डिटोरेटिंग कंडीशन एंड सिंकिंग ऑफ द टेम्पररी वेल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. थगी एक्ट डैश of 1836 and the Thuggy department were simply aiming at policing and prosecuting gangs seen as perpetrating crime in the name of religion. Thuggy act. So choose the correct option. Correct option are option 3, A, B and C. It was a colonial construct to brand various perpetrating groups as thugs. The British considered action against was an act of social reform, and Sir William Silman was the architect of the campaign against Thuggy. Okay, ये 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है. जो कन्फेशंस ऑफ थग है, इट वॉज नॉट रिटन बाय माइक डैश, इट वॉज रिटन बाय फिलिप मिडोज बोलकर एक ऑथर है, उन्होंने लिखी है ये वाली बुक कन्फेशंस ऑफ अ ठग इन 1839. एंड थगी इज ऑथर्ड बाय सर विलियम सिलमन. नो, उनकी बुक का नाम था द रैम्बल्स ऑफ इंडियन ऑफिशियल. रैम्बल्स ऑफ द इंडियन ऑफिशियल, बुक ऑफ विलियम सिलमन. ओके, चलिए. सो करेक्ट आंसर, इट वॉज अ कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट टू ब्रांड वेरियस परपेटिक ग्रुप्स एज ठग्स. मतलब कि जो नॉर्मल ग्रुप्स थे उन्हें भी वो ठग बोल देते थे. बेसिकली ठग्स यानी कि जो चोरी करते हैं, जो किसी को लूटते हैं, दे वेर नोन एज ठग्स एंड देयरफॉर द ग्रुप्स वेर ब्रांडेड और नेम्ड एज ठग्स ताकि उन्हें पकड़ सके. द ब्रिटिश ऑफन फ्रेम्ड देयर सेपरेशन ऑफ ठगी एंड एज एन एक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म. ओके, एंड सर विलियम सिलमैन वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द कैंपेन. ही वॉज ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इन्होंने ही कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी अबाउट द ठगी एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज अगेंस्ट दैम. ओके, एंड उनकी बुक्स का नाम क्या है? रामसियाना द ठग कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एस्टैब्लिशिंग द ठगी एंड डकैत डिपार्टमेंट. उसके बाद में ठगी एंड डकैत डिपार्टमेंट भी एस्टैब्लिश होता है बाय ब्रिटिशर्स ड्यू टू हिज वर्क, सर विलियम सिलमन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. Of the following, which is odd combination of South Indian languages? Correct answer is option 1, A, B, C and E. South Indian languages तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एंड डोगरी. तो ये एक और कॉम्बिनेशन है क्योंकि अगर मलयालम रहता था तो ये चारों भी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस आ जाती थी. ओके, बेसिकली
ये सारे करेक्ट आंसर है, क्योंकि सी सब में ही कॉम्बिनेशन में आ रहा है. सॉरी ये वाले सारे नहीं, ये वाला नहीं है. ऑप्शन 2 नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर डी दिया हुआ है. दिस 4 आर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस. ये और ये, दिस 4 आर और कॉम्बिनेशन. 3 बिकॉज यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ई आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है. सो देयरफॉर देयर आर और कॉम्बिनेशन, बट ऑफिशियल आंसर की में 1 दिया है. ओके. तेलुगु ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड यनम, दैट इज पुदुचेरी. तमिल, तमिलनाडु, लॉन्गेस्ट सर्वाइवल क्लासिकल लैंग्वेज है तमिलनाडु, तमिल, which is also spoken in Sri Lanka and Singapore, some parts. Kannada, Karnataka, Malayalam, Kerala and Lakshadweep Island. Okay, but Dogri, it is a North Indian language spoken in Jammu and Kashmir along with Punjab. Next question. Main painter of Babur period was, who was the main painter of Babur's period? Behzad, a renowned painter during the Timurid period. Okay. Behzad is celebrated for his detailed and vibrant illustrations, mastery of composition, and his ability to convey complex narratives through art. Next question. Arrange the following in chronological order. We again have to arrange. So our correct answer is option B. Option 2. सबसे पहले paper found at Mansura Sindh. Okay, 8th-9th century. Paper found at Mansura Sindh. We will consider it as 9th century. चलिए. Then ऑप्शन ई, जिंक आइसोलेटेड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस एट जबर. जबर क्या है? एक्चुअली इट इज द आइसोलेशन ऑफ जिंक बाय डिस्टिलेशन वाज अचीव्ड इन 12th century एट जबर इन प्रेजेंट डे राजस्थान. दिस प्रोसेस मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन मेटलर्जी. 12th century. Many of you might not know, my surname is also Jawar. Option A, first mention of spinning wheel in India comes in 13th-14th century. 13th century we will take it. 13th century में आता है. Okay. Then first Indian reference of sand clock, 14th century. And first mention of cylinder and piston syringe, late 16th century by Montserrat, Father Montserrat. It is in 16th century. Quite difficult question, but yet ठीक है. The past remains constant, but writings about the past tense is a statement found in option 2, UGC model curriculum on history and archaeology 2001. Okay, it is the statement given by UGC. The past remains constant, but writing about past changes. यहाँ पर बाकी के बुक्स के भी नाम नोट डाउन कर लीजिए. जैसे E.H. कार की बुक का नाम है व्हाट इज हिस्ट्री, जैकेस डेरिडास ऑफ ग्रामेटोलॉजी एंड माइकल फुकोल्ट्स द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. ओके. UGC model curriculum for history and archaeology includes discussion on historiography, the methodology of history, emphasizing the dynamic nature of historical scholarship. Next question. The text that portrayed women as mother as she was, mother as she is, and mother as she will be by Anand Math. It is a book, Anand Math text, in which woman as she was, as mother as she is, and mother as she will be ऐसा बोला गया है. किसने लिखी है? बंकिम चंद्र Chattopadhyay. Bankim Chandra Chattopadhyay has written the book Anand Math. Okay, in 1882. One of the most significant works of Bengali literature and Indian literature. And the novel is known for its portrayal of the Sannyasi rebellion and also for introducing the song Vande Mataram, which is our national song also. This question, Vande Mataram and Bankim Chandra Chattopadhyay Anand Math, is also repeated. Okay. There is a symbolic portrayal of India itself referred to as motherland. वुमेन के जैसा एंड रिफ्लेक्ट्स द चेंजिंग परसेप्शन ऑफ वुमेन्स रोल इन सोसाइटी. इंडिया को हमने वुमेन की तरह ही, मदर की तरह ही माना है, ये उसमें बताया गया है. एंड ऑल्सो द चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी. क्वेश्चन नंबर 27. गिवन बिलो आर 2 statements, assertion and reasoning. It is only during Neolithic times that the settlement pattern of human beings came into existence. During Paleolithic and Mesolithic time, human beings perhaps did not think of settling at one place. Correct answer is option 1. Okay. सो नियोलिथिक टाइम पर सेटलमेंट स्टार्ट हुई थी एंड पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक जो उसके पहले आते हैं, ह्यूमन बींग्स वेरंट सेटल्ड, दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स. ओके. इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नियोलिथिक द ह्यूमन बींग स्टार्टेड टू गेट सेटल्ड. एग्रीकल्चर पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आर करेक्ट? अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, B, C, D and E. So, diarchy was introduced in the provinces by Government of India Act 1919. Diarchy 1919. Annie Besant termed Act of 1919 as unworthy of England to offer and unworthy of India to accept. Provisional autonomy was introduced by Government of India Act 1935.
कांग्रेस रिजेक्टेड द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919. ओके, सो बायकैमरल लेजिस्लेचर जो है इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ इन 1935. ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 6 out of 11 provinces by this act, not at the center. ओके, 1935 में बायकैमरल लेजिस्लेचर्स इंट्रोड्यूस हुए थे. मेनी ऑफ यू माइट गेट कंफ्यूज्ड बाय दिस दैट बायकैमरल लेजिस्लेचर्स वे इंट्रोड्यूस्ड इन 1935 बट नॉट एट द सेंटर, इन 6 provinces out of 11. ओके, आउट ऑफ 11 6 provinces में इंट्रोड्यूस किया गया था, नॉट सेंटर. देन द थिंग इज अबाउट 1919 डायरकी. Montague claims for reforms of 1990. So, the Government of India Act of 1998 introduced a dual scheme, जिसे डायर की बोला जाता है. डुअल स्कीम प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व में. ओके, तो ट्रांसफर गवर्नर के अंडर आते थे, रिजर्व जो आते थे दे वेर अंडर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. देन कम्स एनी बेसेंट, जिन्होंने ये टर्म दिया था अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर एंड अनवर्दी ऑफ इंडिया टू एक्सेप्ट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. हु वॉज एनी बेसेंट? थियोसॉफिकल सोसाइटी के से एसोसिएटेड है एंड ऑल्सो होम रूल लीग. देन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1935. करेक्ट स्टेटमेंट. जब अबॉलिश कर दी गई थी डायरकी एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज एस्टैब्लिश्ड. एंड कांग्रेस रिजेक्टेड द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 as it did not satisfy the demand for Swaraj. Next question. One religion, one caste, one god for man king was the central message of Narayan Guru. Option 3. A social reformer and spiritual leader from Kerala. His teachings and life were dedicated to eliminating caste discrimination and promoting social equality. So उन्होंने ये statement दिया था is for unifying the society free from the divisions of caste and religion. Okay. Next question. Dancing Girl found in Indus Valley excavation belongs to Chalcolithic period. An example metallurgy of the time. An example of aesthetics, Copper Age, Paleolithic Age. पैलोलिथिक टाइम्स. तो अभी थालकोलिथिक एंड कॉपर एज ये दोनों करेक्ट है, ये दोनों सिमिलर है, तो ए एंड डी विल बी प्रेजेंट इन द आंसर. ओके, सो यहाँ पर ए एंड डी 3 ऑप्शंस में है. देन एग्जाम्पल ऑफ मेटलर्जी, बी इज ऑल्सो करेक्ट, देयरफॉर बी विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड. बी इज प्रेजेंट इन ऑल 4. एंड एग्जाम्पल ऑफ एस्थेटिक्स करेक्ट, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ए बी सी एंड डी. ओके, पैलोलिथिक टाइम से एसोसिएटेड है क्या? नो, पैलोलिथिक टाइम पहले आता है, ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले आता है पैलोलिथिक टाइम, सम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बिफोर. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ स्टोन टूल्स. Chalcolithic is characterized by the bronze and copper tools, and the dancing girl is made of bronze. Okay, so therefore she don't belong to Paleolithic age. Our correct answer is option 2, A, B, C and D. Chalcolithic time कब से कब तक आता है ये? 3300 to 1300 BCE. Okay, use of both copper and stone tools. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड यस, यहाँ पर जो एग्जाम्पल ऑफ मेटलर्जी बोला है, बिकॉज द स्टैचू वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज शो केसिंग द एडवांस्ड मेटल वर्क. ओके, एंड ऑल्सो द लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक वॉज यूज्ड विच यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर इंट्रिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटलर्जी. ओके, एंड एस्थेटिक्स यानी कि इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, टेक्निकल मार्वल अलॉन्ग विथ ब्यूटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. Question number 31. Who wrote that factories could, for more effective than schools and colleges, give a new birth to the activities of the nation? Now, who was the person associated with factories? It is option 2, M.G. Ranade. Okay, Mahadev Govind Ranade. He played a pivotal role in the social and economic development of India during the British Raj, and therefore he strongly believed in the industrial developments of India as means to advance the nation's economy and improve its social status. Okay, therefore his advocacy for factories and as institutions was for the progress of nation. उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था. ठीक है, एम जी रानाडे. देन देर आर ऑल्सो अदर पीपल. जीवी जोशी, डोंट कन्फ्यूज, जीवी जोशी का ही नाम है गोपाल हरि देशमुख. गोपाल हरि देशमुख, पॉपुलरली नोन एज लोक हितवादी और जीवी जोशी, वॉज एन इम्पोर्टेंट सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड he contributed to the social reform and literature. Okay, Dadabhai Naoroji, grand old man of India, key figure in Indian independence movement and also founding member of INC. G. Subramaniam Iyer, a prominent journalist and social reformer, जिन्होंने the Hindu newspaper start किया था, which is still prevalent. Next question. Question number 32.
द मेसोलिथिक एंड द चाल्कोलिथिक, वी हैव टू मैच देम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. सबसे पहले ऑप्शन 1 है टूल्स associated with the post paleolithic time, colors, paintings, indus, seals, beardman, steatite. Okay, association based है. Tools corresponds to post paleolithic time, colors corresponds to paintings, indus corresponds to seals and bearded man जो इंडस वैली से एसोसिएटेड है corresponds to the steatite जो मटेरियल यूज हुआ था उनको बनाने में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following was the first Surveyor General of Bengal? Option 3, James Rennie was the first Surveyor General of Bengal appointed in 1767. Father of Indian Geography भी इन्हें बोला जाता है for his significant contribution to the mapping and understanding of the geography of Indian subcontinent. Okay, Father of Indian Geography. Buchanan, geographer and botanist who conducted surveys in various parts of India, but he was not the first Surveyor General. ओके, बखनान, यू माइट गेट कन्फ्यूज विद बखनान बिकॉज वो भी सर्वेयर ही थे, मतलब उन्होंने सर्वे किया था, बट ही वॉज नॉट द फर्स्ट सर्वेयर जनरल. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग बिलीव्ड इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बिकॉज ग्रोथ इन डैश. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. एक्चुअली 3 और 4 दोनों भी तो सेम ही है, बट इन आंसर की इट इज़ गिवन 4. ऑफिशियल आंसर की में 4 दिया है. बेसिकली 3 and 4 दोनों सेम ही है, सो वी कैन टेक बोथ. दैट इज एग्रीकल्चरल आउटपुट, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री एंड 1-to-1 नीड बेस. सो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ये नहीं है करेक्ट बिकॉज इट डोंट एक्सप्लेन द बिलीफ इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. 1-to-1 नीड बेस यानी कि बार्टर सिस्टम था पहले हमारे पास में, एंड देयरफॉर लेटर ऑन व्हेन समवन नीड समथिंग इन एक्सचेंज वो उसे वो प्रोवाइड करते थे, सप्लाइंग गुड्स रिलेटेड टू कंज्यूमर्स. 1-to-1 नीड बेस जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी होता है एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में भी होता है. कॉटेज इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, रूरल इकोनॉमी मिलती है ये कॉटेज इंडस्ट्रीज. मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज दिस आर एसोसिएटेड विद द मेटल्स, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड. मेटल्स एंड एग्रीकल्चरल आउटपुट ये तो एग्रो बेस्ड में आएगा ही ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 35. Edward Said's Orientalism dash 1978. Correct answer is option 2, B, C and D. It brought about major shifts in understanding of colonial structures. Okay. Then influenced the African writers and also brought in moods of systematic methodological suspicion about Western images of the non-West. Okay. Edward Said's Orientalism, ये उनकी बुक का नाम है ओरिएंटलिज्म, जो उन्होंने 1978 में लिखी थी. इज अ सेमिनल वर्क दैट क्रिटिक्स वेस्टर्न परसेप्शंस ऑफ ईस्ट और द ओरिएंट. जो वेस्टर्न लोगों की थिंकिंग थी अबाउट ईस्ट दैट इज एशिया, वो उससे एसोसिएटेड बुक है. इट ब्रॉट अ मेजर शिफ्ट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स. ओके, जो कॉलोनियल टाइम पर जो भी सेटअप कर दिया गया था वो चेंज करने के लिए उनकी बुक में उन्होंने लिखा है. देन इट इन्फ्लुएंस्ड अफ्रीकन राइटर्स ऑल्सो and introduced methodological suspicion towards West. Like scholars को lead किया to question and critically analyze the representation which was previously established. Next question. Orientalism is a study of thought based upon ontological and epistemological distinction made between the Orient and the Occident is opined by option 4, Edward W. Said. अभी हमने पढ़ा उनके बारे में. This is also a statement from his book Orientalism. Said is associated with the concept and as per Said is a Western style. Orientalism is a Western style for dominating, restructuring and having authority over the Orient. It is both an academic field and manner of thought. Okay, predicated on the ontological and epistemological distinction between the Orient and the Occident. यहाँ पर Occident है, not accident. Occident. ओके, ये यानी कि वेस्ट आता है एंड ओरिएंट यानी कि जो ईस्ट, जो एशिया से एसोसिएटेड लोग हैं उनके बारे में. Focuses on how the West has historically perceived and represented Eastern societies as exotic, backward, uncivilized, and at times dangerous. He argues that this representation served to justify Western political and economic domination. जो आज तक का रिप्रेजेंटेशन था ईस्ट का, जैसे कि they were uncivilized, they didn't know anything, they were backward. This is wrongly interpreted, wrongly given in the books by the Western people for their political and economic means. Okay, next question.
मैथ्स लिस्ट. ओके, 1 minute. जस्ट नोट डाउन फ्यू थिंग्स. गायत्री जी स्पिवक, उनकी बुक का नाम है कैन द सबल्टन स्पीक. हर बुक नेम इज कैन द सबल्टन स्पीक. ओके. देन केट क्यूरी, शी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ ओरिएंटलिज्म. एंड मैक्स मिलर, अ जर्मन फिलोसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट. ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है इन द स्टडी ऑफ ओरिएंटलिज्म. ओके, जर्मनी से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्स लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. वी हैव टू कंप्लीट द वीडियो वेरी फास्ट. क्वेश्चन नंबर, ओके मैथ्स करना है. क्वेश्चन नंबर 37. ऑप्शन इज 2. दाबिर, इट इज अ टर्म. दिस आर टर्म्स एंड दिस आर देयर मीनिंग्स. दाबिर इज अ टर्म यूज्ड फॉर मास्टर ऑफ सेरेमनीज. ऑप्शन 1. सर ए नौबत कमांडेड आर्मी. मजूमदार अकाउंटेंट. एंड चिटनिस हेल्प द किंग विद हिज करस्पॉन्डेंस. ओके, दाबिर मास्टर ऑफ सेरेमनीज, सर ए नौबत कमांडेड आर्मी, मजूमदार अकाउंटेंट एंड चिटनिस हेल्प द किंग विद करस्पॉन्डेंस. Next question. I am associated with men who thought never seen by the masses, who though never seen by the masses are yet reverenced by them as gods, and who feel every pulse of public feeling was communicated to Lord Ripon by. It is a statement of A.O. Hume, a British civil servant who played a pivotal role in the establishment in the founding of INC in 1885. Okay. ये उनका स्टेटमेंट है. आई एम एसोसिएटेड विथ मैन हु दो नेवर सीन बाय द मासेज आर येट रिवर्स्ड बाय देम एज गॉड्स एंड हु फील एवरी पल्स ऑफ पब्लिक फीलिंग. ये स्टेटमेंट उन्होंने A.O. हुमे ने लॉर्ड रिपन को बोला है. सो ही वॉज लाइक ही वॉन्टेड टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेटेड इंडियंस टू डिस्कस एंड प्रपोज सोल्यूशंस फॉर देयर ग्रीवेंसेज, एंड देयरफॉर उन्होंने INC के एस्टैब्लिशमेंट में हेल्प की थी. His understanding of the significant and unseen influence of educated Indians in shaping public opinion. Okay, because he was closely associated with the people, he was like he wanted to build a platform for the educated so that they might connect with the government. But he is criticized widely. That is the matter. Different matter. Next question. Question number 39. The character of Bhagwan Shri Krishna teaches us about. Option 2, A, B, C and D. That is Vishwatattva, place of everyone in one's life, true friendship and balancing of emotions. Okay, Vishwatattva, universal or cosmic understanding. भगवद गीता में ये बताया गया है. His teachings provide a perspective of seeing the universe as one entity, place of everyone's in one's life. That is हर किसी को उनके इम्पोर्टेंट फील करवाना एंड उनको उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग रखना. ट्रू फ्रेंडशिप, we know his association with Sudama, his association with Arjun and also with Draupadi. So therefore friendship and balancing of emotions. Throughout his life he demonstrated the importance of emotional intelligence. Okay, travel or frivolous character, it is not Krishna's character, as his teachings were profound and deal with significant aspects of life, ethics and duties. Okay, next question. 40. Correct answer is option 4. These are the authors and these are the names of their books. I have said to note down the names. यहाँ पर ये कार दिया है and we know his book name is What is History? Option 4. अभी हमने देखा था. Then Mark Bloch's book name is The Historian's Craft. NL School से associated है Mark Bloch. Eric Hobsbawm, The Practice of History, and then Sheikh Ali, History, Theory and Method. Option 1. Okay, note down properly. Now next question. The intricate carvings of Kakatiya art are the continuation of option 3, A, B, D and E. Chalukyan art, Satvahana art, Rashtrakoot and local art traditions. Okay, so Chalukyan art, it is the known for their architectural and sculptural innovations which were adopted by the Kakatiyas. Then जैसे कि वो इंट्रिकेट कार्विंग्स जो टेम्पल्स पर मॉन्यूमेंट्स पर दिखती है वो चालुक्य से आई. देन सातवाहनास, दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द काकतियास. ओके, known for their contribution to Indian art such as Amravati sculpture and their style of floral and geometric patterns. राष्ट्रकूट सातवाहना के कौन से है? फ्लोरल एंड जोग्राफिक पैटर्न्स. फिर राष्ट्रकूट से उन्होंने क्या लिया था? रॉक कट आर्किटेक्चर. ओके, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है राष्ट्रकूट, द एलोरा टेम्पल आर्किटेक्चर, वो भी उससे भी इन्फ्लुएंस हुए थे काकतिया. एंड लोकल आर्ट ट्रेडिशंस फ्रॉम द रीजन ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश.
they derive heavily from it. ओके, therefore ये सबसे यूनिक उनके टेम्पल आर्किटेक्चर है, सबसे यूनिक उनका फॉर्म है किनका, काकतिया का. दे स्टैंड डिस्टिंक्ट. चोला आर्ट इट इज़ नॉट एसोसिएटेड. ओके, काकतिया's art continuation and development were most directly influenced by immediate predecessors, and Chola distant थे. They were not immediate, therefore it did not influence them. Next question. Which of the following works is not composed by Aryabhatta? Which is not composed? ब्रह्म सिद्धांत. ब्रह्म सिद्धांत किसने लिखी हुई है? Who is the author of Brahma Siddhanta? Brahmagupta. Okay, Brahmagupta was the author of Brahma Siddhanta. आर्यभट्ट ने बाकी सारे बुक्स लिखी है, जैसे आर्यभट्टीय, आर्य शास्त्र एंड 10 गीतिका सूत्र. ओके, आर्यभट्टिया वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर. रिलेटेड बुक 10 गीतिका सूत्र. आर्यभट्टिया में ही सेक्शन है रिलेटेड विद 10 गीतिका. ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशंस. देन another is Arya Shastra. It is also book of Aryabhatta. Next question. In which year the Battle of Talikota was fought? The famous Battle of Talikota between the Vijayanagar rulers and the Deccan Sultanate was fought in the year 1565. Okay, 1565 में ये battle होता है between the Vijayanagar Empire and the Deccan Sultanates, जिसमें डेक्कन सल्तनत की जीत होती है and later the Vijayanagar Empire demolished. So 1555, also note down the timing. 1555 में does not correspond to any major battle involving Vijayanagar and Deccan, so there is nothing. 1567 historically noted for other events like siege of Szigyetar in Hungary, so none association with Talikota. And 1575 battle of Nagashino in Japan. ठीक है, ये सारे ईयर्स कोई सिग्निफिकेंट नहीं है इंडिया के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the military commander of Delhi Sultanate army who invaded Kakatiyas of Warangal? जब वारंगल में एक्सपीडिशन जाता है तो किसके अंडर जाता है? मलिक कफूर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी's army military. Okay, he led several successful military campaigns in South India like the Kakatiya dynasty of Warangal expedition. Okay, we have already discussed about the expeditions of Alauddin Khilji as well as Malik Kafur in the starting of the series only. 14-15 वाले जो वीडियोस थे हमने उसमें भी डिस्कस किया है. क्वेश्चन नंबर 45. ट्रेड एंड कॉमर्स आर मीन टू डेवलप द सब्जेक्ट्स ऑन ऑप्शन 3 A B D and E. फूड इंडस्ट्री, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंटरडिपेंडेंसी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स. सो ट्रेड एंड कॉमर्स मीन टू डेवलप ऑन द सब्जेक्ट्स कौन से? फूड इंडस्ट्री, critical role in the development of food industry by facilitating the exchange of food products, food distribution, innovation. Economic stability, trade and commerce contribute to the economic stability, enable countries to utilize their resources efficiently. Interdependency, they are interdependent because lead to stronger diplomatic and mutual growth. ठीक है, cooperation बढ़ता है because of the trade and commerce. Construction of tanks, डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, बट अगर ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा है तो अलग अलग चीज़ें कंस्ट्रक्ट होगी, उसमें टैंक्स भी कंस्ट्रक्ट हो गए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 46. द 25th and 42nd amendment in 1971 and 76 gave precedence to option 2 directive principles. Okay, aim to strengthen the directive principles of state policy over fundamental rules, rights. By the way, what are the directive principles? Guidelines for framing the laws of government by the government. जो लॉज होते हैं गवर्नमेंट के वो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं. ठीक है. फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, एम टू एस्टैब्लिश अ जस्ट सोसाइटी. एंड दिस अमेंडमेंट्स मेड इट क्लियर इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वुड टेक प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद द इवोल्यूशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन. ऑप्शन 4. ओके, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन्स, ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी in the past and present. It comprises various aspects including social, cultural and physical developments. Okay, basically evolution, growth, development जो human being की है वो इसमें आती है. Next question. Question number 48. Given below are two statements, assertion and reasoning. Pali language, which was once limited to certain areas of East India during Buddhist period, became more popular because Buddha adopted Pali for his works, saying Pali dharmanushasana.
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, असर्शन में क्या बोला था कि पाली पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया में एसोसिएटेड था, बट बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म इट स्प्रेड एंड इट बिकेम मोर पॉपुलर। क्यों? तो बुद्धा ने पाली को अडॉप्ट किया था एज हिज लैंग्वेज एंड फॉर हिज सेइंग, फॉर हिज वर्क्स। ठीक है, उन्होंने पाली में ही कन्वर्सेशन की थी, देयरफॉर इट स्प्रेड वाइडली। जो अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जैसे त्रिपिटका, ये सब पाली लैंग्वेज में बने हुए हैं। द इंस्ट्रक्शन ऑफ धम्मा इन पाली, पाली धम्मानुशासनम का मतलब क्या होता है? द इंस्ट्रक्शन ऑफ धम्मा इन पाली विच हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द स्प्रेड एंड पॉपुलैरिटी ऑफ पाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हु अकबर अपॉइंटेड टू पोस्ट ऑफ वकील इमीडिएटली आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ बैरम खान? ये थे मुनीम खान। मुनीम खान हु वॉज अपॉइंटेड एज द वकील। वकील कौन होते थे? बेसिकली ही वॉज द चीफ मिनिस्टर फॉर हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर एंड एडवाइजिंग द एम्पायर। ओके, next question. At the behest of Warren Hastings, a digest of Hindu laws was compiled by a committee of 11 pandits in 1775. So, उसमें correct answer है option 1, A, B and D. The digest was translated into English by N.B. Haled. It helped the European judges and reduced their dependency on indigenous interpreters, and it helped the British to understand the legal sense of Indians in the historical perspective. Okay? क्यों कन्वर्ट किया था उन्होंने? क्यों डाइजेस्ट बनाई थी हिंदू लॉज की? ताकि जो इंटरप्रेटर्स थे, जो उनके अकॉर्डिंग जजमेंट्स पास करते थे, उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाए। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द लीगल सेंस ऑफ इंडियंस, कि इंडियंस के यहाँ पर लॉ को कैसे यूज़ किया जाता है, यहाँ पर कैसे जस्टिस होता है, ये सब पता चला था। ओके, इट रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट? नो। इट बिकेम द कॉर्नर स्टोन फॉर द पैसेज ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। सो ये भी क्वेश्चन रॉन्ग है। पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है? 1784 में आता है, एंड वॉज प्राइमरली फोकस्ड ऑन रीस्ट्रक्चरिंग द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, हिंदू मतलब इंडिया से एसोसिएटेड नहीं था, बट जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे जहाँ पर बहुत करप्शन वगैरह हो रहा था, देयरफॉर इट वॉज यूज्ड फॉर इट। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ओके, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 उसके पहले ही आ गया था, एंड इट रिड्यूस द इंपॉर्टेंस? नो। 1773 was a piece of British legislation aimed at addressing issues of governance in the British East India Company. तो ये जो दोनों एक्ट है ये ईस्ट इंडिया कंपनी से एसोसिएटेड है, इंडिया से नहीं। ओके, हियर वी कंप्लीट 50 क्वेश्चंस। सो दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 50 क्वेश्चंस। लेट्स कीप द स्पिरिट्स हाई। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 51, Alvars and Nayanars belong to option 2, that is correct answer, A, B, C and D. हिंदुइज्म, वैष्णविज्म, जैनिज्म एंड वेदिज्म। ओके, अलवर्स, नयनार्स। सो बेसिकली अलवर्स जो विष्णु भगवान के थे एंड नयनार्स जो शिव जी के थे, शैविज्म से एसोसिएटेड। देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, एंड दिस आर द ब्रांचेस ऑफ हिंदुइज्म एंड वेदिज्म। वेदिज्म क्या होता है? जो वैदिक ट्रेडिशन से एसोसिएटेड होता है, दैट इज वेदिज्म। ओके, जैनिज्म इज अ डिफरेंट ब्रांच, it is not part of Jainism, therefore it is a distinct religious tradition. Okay, next question. According to Jainas, the Siddha souls are of 5 categories. Option 4, 5 categories. Okay, basically souls that achieved liberation, उन्हें क्या बोला जाता है? सिद्धा souls, सिद्धि प्राप्त होना. So they have been freed from the cycle of birth and death and attained the state of infinite. Okay, रीबर्थ वाला जो भी मैटर है उससे वो फ्री हो जाते हैं, एंड दे आर अटेन द इन्फिनाइट. ओके, ब्लिस, नॉलेज, परसेप्शन एंड पावर. स्टेट ऑफ इन्फिनाइट ब्लिस, नॉलेज, परसेप्शन एंड पावर, एंड दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर स्पिरिचुअल अकम्प्लिशमेंट. ओके, स्पिरिचुअल अकम्प्लिशमेंट के बेस्ड पर, एंड अकॉर्डिंग टू जैना बिलीव्स दिस सिद्धास आर परफेक्टेड सोल्स हैविंग शेड देयर कार्मिक और कर्मिक बॉन्ड्स कंप्लीटली. मतलब जो कर्मा के बॉन्ड्स थे उन सबसे वो लिबरेट हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मलिकंबर आर करेक्ट? मलिकंबर के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, A, B, D and E. मलिकंबर was sold at Ahmednagar to Genghis Khan, the minister of Murtaz Nizam Shah I. Okay, Battle of Bhatwadi was one of the decisive battles in the history of Deccan won by Malikambar. Then Malikambar defeated Abdullah Khan, the governor of Gujarat. Malikambar's revenue system was based primarily on Raja Todarmal's model. ठीक है, अब यहाँ पर किसके बारे में पूछा है? मलिकंबर के बारे में. वी ऑल नो मलिकंबर हु वॉज बेसिकली अ स्लेव, जिसे बेचा गया था अहमदनगर टू चंगेज खान जो भी है. ठीक है, उनको बेचा गया था. देयरफॉर ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ही वॉज मिनिस्टर ऑफ मुर्तज़ा निज़ाम शाही डायनेस्टी ऑफ नगर, अहमदनगर. ठीक है,
First is correct. And yes, Malik Ambar was Ethiopian by birth. Keep this in mind. He was Ethiopian by birth. Battle of Bhatwadi was one of the decisive battles. So Battle of Bhatwadi कब होता है? 1600 में. 1600. Okay. It was a decisive battle won by Malik Ambar. Okay. Then and it laid a significant mark in the history of Deccan also. Then option C. In 1607, Malik Ambar transferred his capital to Khirki, about 10 miles from दौलताबाद. So Malik Ambar transferred his capital from Khirki, जो दौलताबाद के पास में था. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी, बट द स्टेटमेंट इनएक्यूरेटली डिटेल्स द इवेंट. खरकी जो कि बाद में क्या है? औरंगाबाद. एंड एट प्रेजेंट इट इज नोन एज छत्रपति संभाजी नगर. ओके. सो पहले खरकी बोला था, सबसे पहला नाम खरकी मलिक अंबर ने दिया था. एंड औरंगाबाद वॉज द नेम गिवन बाय औरंगजेब. ओके. सो खरकी विच बिकेम अ सिग्निफिकेंट अर्बन सेंटर अंडर हिज रूल. एंड जो 10 माइल्स वाला डिस्टेंस है वो रॉन्ग है. ठीक है. दौलताबाद से जो 10 माइल्स वाला डिस्टेंस है, इट इज़ रॉन्ग. Therefore, C statement is wrong. Malik Ambar defeated Abdullah Khan, governor of Gujarat. ये भी statement correct है. Had several confrontations with Mughal forces and their allies, and therefore in one battle he defeated governor of Gujarat. Then comes option E. Malik Ambar's revenue system was primarily based on Raja Todarmal's model, and later इन्हीं का जो revenue model था, farming का जो थे principles, इन्हें शिवाजी महाराज ने भी adopt किया था. Okay, so this statement is correct. Malik Ambar admired and implemented revenue system of Raja Todarmal, which was initially introduced during the reign of Akbar. Okay. Next question. Question number 54. This is sheer waste of time unless the researchers know what to take down and how to take down and how to classify. Who wrote it? Option 2. B. Sheikh Ali. इन्होंने ये statement दिया है. B. Sheikh Ali for his contribution to the field of history and historiography. Well known. And his emphasis on meticulous research methodology include what data to collect and how to collect. Okay, and how to categorize it. Highlight the importance of the precision and method in historical research. Next question. Option match करना है list 1 को list 2 से. Okay, so there are people and the respective समाज और सभा, their social reform सभाs. Correct answer is option 2. सबसे पहले तो राजा राम मोहन राय was associated with आत्मीय सभा. Option 3. आत्माराम पांडुरंग was associated with प्रार्थना समाज. केशव चंद्र सेन, he was associated with ब्रह्म समाज. एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, was associated with आदि ब्रह्म समाज. ओके. ब्रह्म समाज पहले तो एक ही था, बट लेटर ऑन उसमें डिवीजन होता है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजीज. आत्मीय सभा, फाउंडिंग फादर इज बेस्ट नोन फॉर फाउंडिंग द ब्राह्मो समाज मूवमेंट, मॉडर्नाइज हिंदू सोसाइटी. ठीक है. आत्माराम पांडुरंग, उन्होंने क्या फाउंड किया था? प्रार्थना समाज इन बॉम्बे इन 1867. ठीक है. फिर केशव चंद्र सेन वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज एंड played which was founded by Raja Ram Mohan Roy. ठीक है. He was prominent figure of that and he played a significant role in spreading the Brahmo Samaj influence beyond Bengal. बाकी के जो इंडिया में उनका इन्फ्लुएंस ब्रह्मा समाज का इन्होंने स्प्रेड किया. देवेंद्रनाथ टैगोर, आदि ब्रह्म समाज फाउंडेड, he was the founder member and this group adhered more to the original Brahmo principles established by Raja Ram Mohan Roy. Okay, जो पहले प्रिंसिपल्स थे उन्होंने एस्टैब्लिश किए हुए, उनको किसने स्प्रेड किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर. नेक्स्ट क्वेश्चन. List 1, match list 1 with list 2. Okay, these are the kings and the authors, famous poets जो उनके कोर्ट में थे. So correct answer is option 2. सबसे पहले कुमार पाल चरित्र संग्रह. नो किंग नहीं है एक्चुअली, ये उनके बुक्स है, उनका वर्क है एंड ये उनके ऑथर है. सॉरी. सो कुमार पाल चरित्र संग्रह, इट वॉज बाय ऑप्शन 3 जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी. ओके. गौड़बाह, इट इज बाय वाकपट्टी राजा. हमीर महाकाव्य बाय नयन चंद्र सूरी एंड प्रबंध कोश बाय राजशेखर. ओके. प्रबंध कोश बाय राजशेखर. सो फर्स्ट वाला कुमारपाल चरित्र संग्रह, इट रिफ्लेक्ट्स द स्टोरी ऑफ कुमारपाल जो सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे गुजरात के. ओके. देन गौड़बाहो, ये narrates the exploit of Vakapati, a king who defeated Goda king. Okay, and it is important source of history and poet showcases the poet's command over Sanskrit language. हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का बुक है ये. इट सेलिब्रेट्स द लाइफ एंड हीरोइज्म ऑफ हमीरा, अ चौहान किंग ऑफ रणथंबोर. हमीरा जो किंग थे रणथंबोर के, उनके बारे में है. एंड राजस्थानी लिटरेचर इसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है. प्रबंध कोश was written by राजशेखर, ये नेम आपने कई बार सुना होगा. इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ वेरियस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ दैट टाइम.
लेट मी नो इन द कमेंट्स राजशेखर कौन से रूलर से एसोसिएटेड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करना है हमें अब, बिकॉज वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है. मौर्यस इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन ऑप्शन 3, दैट इज एग्रीकल्चरल आउटपुट, स्मिथिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड एक्सकवेशन ऑफ टैंक्स. पेपर टेक्नोलॉजी उस टाइम पर आई नहीं थी हमारे पास में. ओके, काफ़ी लेट आया है पेपर टेक्नोलॉजी. Mauryan economy primarily based on agriculture, which was the main source of livelihood of major population. Smithing industry, iron smithing जो था उस टाइम पर prevalent, use of iron tools and weapons, therefore smithing industry. And textile industry, of course, fabric, कपड़े, cotton and silk textiles were not only used domestically but was also exported. And excavation of tanks for irrigation purpose. Okay. Question number 58. Reasons for the continuous existence of Jainism in India are option 2, A, B, C and E. What are the reasons? Live and let live, ahimsa परमो धर्म, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ऑप्शन ई ह्यूमन फ्रेटर्निटी, नेचर ऑफ ब्लड फॉर ब्लड. मारा मारी तो होगी ही नहीं ना अगर अहिंसा की बात चल रही है तो. सो लिव एंड लेट लिव, जीने जियो और जीने दो, द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म. कंपैशन एंड नॉन वायलेंस टुवर्ड्स ऑल, अहिंसा परमो धर्म, दैट इज नॉन वायलेंस, द हाइएस्ट moral virtue. Trade and commerce, we all know that Jain community is very much excellent in the trade and commerce related, they are well known merchants. Human fraternity teaches the equality of all souls, सभी समान है ऐसा बोला जाता है, regardless of the physical form they inhabit, यानी कि जितने भी जीव है वो सब समान है, they are equal. Okay, next question. Who introduced नक्शबंदी सिलसिला in India? नक्शबंदी सिलसिला in India was introduced by ख्वाजा बाकी बिल्ला. Okay, he played a pivotal role in establishing नक्शबंदी order in Indian subcontinent. इसमें क्या स्पेशलिटी है नक्शबंदी में? इट एम्फसाइजेस साइलेंट दिकर, दैट इज रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड एंड डिराइव्स इट्स टीचिंग फ्रॉम अ लीनियज दैट ट्रेसेस बैक टू प्रॉफिट मोहम्मद. ओके, नक्शबंदी सिलसिला के फाउंडर कौन है? नक्शबंदी. ओके, 1 मिनट. यस, शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी, फाउंडर ऑफ नक्शबंदी सिलसिला, एंड इन इंडिया बाकी बिला, ख्वाजा बाकी बिला इज द फाउंडर. ओके, मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिला सूफी ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया था. एंड नियामतुल्लाह कादरी, इन्होंने कादरी ऑर्डर, कादरी सूफी ऑर्डर. ओके, एंड शतारी सूफी ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजनिंग. एम्परर अशोका इन हिज रॉक एडिक्ट 13 says he maintains equal respect for brahmanas and shavanas. Reason, he believed in सर्व धर्म समभाव. एक्चुअली रॉक एडिक्ट 13 में नहीं दिया हुआ है, रॉक एडिक्ट 7 में दिया हुआ है जो टॉलरेंस है, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ब्राह्मणास एंड श्रवणास, एंड ही बिलीव्ड इन सर्व धर्म समभाव. ये क्वेश्चन, ये पॉइंट करेक्ट है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. ओके, सर्व धर्म समभाव कहाँ बोला गया है? ही बिलीव्ड इन सर्व धर्म समभाव एंड इट इज गिवन इन द रॉक एडिक्ट 7, नॉट 13. नेक्स्ट क्वेश्चन 61. What were the reasons behind the failure of Bahadur Shah to crush the Sikh uprising under Banda Bahadur? So basically यहाँ पर failure पूछा है बहादुर शाह, the Mughal emperor. It is option 1 the correct answer. Sikhs enjoyed the support of local population. Sikhs made skillful use of the terrain. Local population support, skillful use of the terrain and followed guerrilla made of warfare. Mode, यहाँ पर mode है. Mutual jealousy and quarrel of Mughal commanders, उनके बीच में ही जम नहीं रहा था. Weakness of the imperialist against the nature of Sikh uprising and their tactics. Okay, जो लास्ट वाला है, बहादुर शाह applied the law of escheat after the death of Guru Gobind Singh which ruled the common people in revolt. ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है. ओके, बाकी के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है. Sikhs enjoyed the support of local people, of course, क्योंकि सिखिज्म स्प्रेड हो रहा था उस टाइम पर, and under the leadership of बंदा बहादुर it played a very significant role. Then useful use of terrain. यूज ऑफ टेरेन वॉज यूज, जो एरिया, जो लोकेलिटी थी. एंड ग्यूरिला वॉरफेयर, जो मराठाज ने भी यूज़ किया था. म्यूचुअल जेलसी एंड कॉरल अमंग द कमांडर्स ऑफ मुगल. उस टाइम पर काफ़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में. सो देयरफॉर, एंड वीकनेस ऑफ द इम्परलिस्ट, जो एम्परर था उसका वीकनेस अगेंस्ट द नेचर ऑफ सिख अपराइजिंग. जो अपराइजिंग थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, बट जो एम्परर था वो वीक हो रहे थे. बेसिकली मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ही वीक हो रहा था, वी ऑल नो. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the author of Sondarananda Kavya? Sondarananda Kavya. It is option 2 Ashwaghosh. Ashwaghosh, the renowned author of Sondarananda Kavya, जो संस्कृत लिटरेचर में लिखा गया है. It is a poem that narrates
स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ नंदा, ओके, हाफ ब्रदर ऑफ बुद्धा। जो नंद थे वो हाफ ब्रदर थे बुद्धा के, ब्लेंडिंग डीप फिलोसॉफिकल इंसाइट्स विद पोएटिक ब्यूटी, ठीक है। अश्वघोषा का काफ़ी फेमस कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, बुद्ध चरिता इन संस्कृत, उन्होंने ही ये वाला भी पोयम लिखा है। एंड इसमें उन्होंने नंद जो कि हाफ ब्रदर थे किसके, बुद्ध के, उनकी स्टोरी बताई, स्पिरिचुअल जर्नी, जब उन्होंने भी इनलाइटनमेंट का पाथ चूज किया था वो बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय कंबन? इट इज ऑप्शन टू मोवरल्ला। कंबन रामायण, इट इज़ वेरी फेमस। फिर सदोपकार अनथी, इट इज़ ऑल्सो वेल नोन बुक। एंड एरुलपथु, इट इज़ ऑल्सो रिटन बाय कंबन। सिर्फ कौन सी बुक नहीं लिखी है, मूवरउला, इट इज़ नॉट रिटन बाय कंबन, ठीक है। कंबन रामायण, वर्क ऑफ कंबन, इट इज़ वाइडली सेलिब्रेटेड इपिक, बेसिकली तमिल एडिशन है ऑफ रामायण, ठीक है, वाल्मीकि रामायण का। देन सदोपकार अनथी, ये भी कंबन का ही बुक है। एंड एरुलपथु भी कंबन ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुबरउल्ला की एक्चुअली ऑथरशिप पता नहीं है, बट कुछ लोग बोलते हैं कि ओथम दनार, लेट मी राइट द नेम, ओथम दनार इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग मे नॉट बी कॉल्ड द नॉन वैदिक उपनिषद? मतलब कि वैदिक उपनिषद कौन सा इसमें से? इट इज ऑप्शन 4 केन उपनिषद, इट इज अ वेरी वेल नोन उपनिषद, कंसिडर्ड वन ऑफ द प्रिंसिपल उपनिषद and is associated with सामवेद, okay. The Ken Upanishad is also known as the Kenopadesha, delves into the nature of Brahman, the ultimate reality, and the inquiry of the inner self, the Atma. ब्राह्मण एंड आत्मा के बीच में आता है केन उपनिषद, उनके बारे में इलेबोरेटली डिस्कस करते हैं। इट इज अ वैदिक टेक्स्ट, thus making the statement incorrect, सॉरी नॉन वैदिक इसे बोलना गलत है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस जो होते हैं एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, इनको अलाइन करता है क्लोजली ऑन द कोर थीम ऑफ वैदिक लिटरेचर। बाकी जो जबाला उपनिषद है, इट इज़ इंडीड अ वैदिक उपनिषद, मेकिंग इट क्लासिफिकेशन करेक्ट एंड नॉट द आंसर। एक्चुअली जबाला उपनिषद किसका है, ये भी वैदिक ही है, लिटरेचर का पार्ट है। गर्भ उपनिषद भी वैदिक लिटरेचर का ही पार्ट आता है, ओके। इट्स कंटेंट एंड एसोसिएशन विद वेदास, क्लासिफाई इट इज अ वैदिक उपनिषद। यहाँ पर क्या पूछा है, नॉन वैदिक, मे नॉट बी कॉल्ड द नॉन वैदिक, ओके। एंड सुबाला, ये यजुर्वेदा से एसोसिएटेड है, इट डिस्कस द नेचर ऑफ ब्राह्मण एंड इट इज अ पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। सो आवर करेक्ट आंसर इज केन उपनिषद, सबसे पहला। यू हैव टू स्टडी ऑल द उपनिषद्स, जो एटलीस्ट जो क्वेश्चंस में आए हुए ना पहले वाले, उनको तो पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज दे डू रिपीट। कुछ नहीं तो अगर उनका नॉलेज भी है थोड़ा बहुत तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नया क्वेश्चन भी आता है तो, ओके। अब करेक्ट आंसर इज केन उपनिषद। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 65, लिटरली सोर्सेज फॉर स्टडी ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, oh sorry, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 A C D N E। तो लिटरली सोर्सेज फॉर स्टडी ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड श्रीमद रामायणा, द श्रीमद महाभारता, इंडिका ऑफ मेगास्थनीज एंड अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। यहाँ पर क्या पूछा है, लिटरली सोर्सेज यानी कि रिटर्न सोर्सेज या फिर जो ओरली स्पोकन है फिर बाद में उसको लिखा गया है, तो इसमें कौन सा आता है, श्रीमद रामायण, श्रीमद महाभारत, इंडिका ऑफ मेगास्थनीज एंड अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, ठीक है। कॉइन्स लिटरली सोर्स में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूड़ामणि इज एन ऑर्नामेंट, चूड़ामणि इज एन ऑर्नामेंट, ये क्वेश्चन ना ड्रॉप हुआ है बिकॉज यहाँ पर क्या बोला गया था, गिवन टू देवी सीता बाय हनुमान। एक्चुअली हनुमान जी को देवी सीता देती है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हनुमान जी ने देवी सीता को दिया है। हनुमान जी ने देवी सीता को क्या दिया था, रिंग दिया था ऑफ राम, बट देवी सीता ने फिर उन्हें चूड़ामणि दिया था, देयरफॉर बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। बाकी इट इज मेड ऑफ मेटल्स एंड यूज इन ड्रेसिंग द हेयर, यहाँ पर सर में लगाते हैं यहाँ पर, सो इट इज़ यूज एंड शादी में यूज़ किया, शादी में लगवाते हैं, रेफर टू इट इन श्रीमद रामायण, ये भी करेक्ट है, ओके। एंड प्लेस नेम, ये तो कुछ पता नहीं है, देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द नेम ऑफ प्लेस इन बंगाल, स्टिल refers to an ornament which is used in the hair and it has a significant evidences in the history, in the mythology. Therefore our correct answer is A, B, D and E, option 2, but जो B है statement वो गलत है, इसीलिए क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statements are correct? Correct answer is option 3 A, C, D and E. Why Jahangir conferred the title of Nadir-uz-Zaman, Wonder of the Age, to painter Abul Hasan?
if you remember, we have discussed about the titles given by Jahangir to various painters. Okay, Jahangir conferred the title of Nadir-uz-Azhar to painter Akareza. Okay, then Jesus' father Ferruh Qureshi, who visited imperial court, mentions that Jahangir liked European art of painting. जहांगीर को पसंद ही था यूरोपियन आर्ट. द बॉर्डर डेकोरेशन ऑफ द पिक्चर्स इन जहांगीर्स एल्बम्स आर रिच विद द सीन्स डिपिक्टिंग सोशल थीम्स. इट इज़ ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज उन्होंने काफ़ी वाइडली कवर किया था. ओके, सिर्फ ऑप्शन सी है जो गलत है. उस्ताद मंसूर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर ड्यूरिंग जहांगीर्स राइम हु एक्सेल्ड इन पेंटिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स. उस्ताद मंसूर किसके टाइम पर थे? रिनोन फॉर हिज नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, एंड ही हिमसेल्फ प्रेज्ड मंसूर इन हिज मेमोरियल्स. ओके, oh sorry, अब इनकरेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सॉरी, इनकरेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. जहांगीर कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नदीर-उस-असर. ओके, ये वाला गलत है. टू अकारेजा, इट इज़ नॉट करेक्ट. अकारेजा वॉज अ प्रोमिनेंट पेंटर इन जहांगीर्स कोर्ट, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइटल उन्होंने नहीं दिया था. ओके, नदीर-उज़-ज़मान वॉज गिवन टू अबुल हसन. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन सी, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है 1. देन ऑप्शन सी, फ्लोरा एंड फोना पेंटिंग्स के लिए उस्ताद मंसूर वॉज वेल नोन. देन ऑप्शन 4, Jesus' father Ferruh Qureshi, who visited and said Jahangir liked European art of painting. And then option E, border decoration of the pictures in Jahangir album are rich with scenes depicting social themes. It is also correct. Okay, only option B is not correct. नदीर-उज़-असर ये टाइटल उन्होंने नहीं दिया था अकारेजा को. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फॉर द गड़बड़. क्वेश्चन नंबर 68, हु सेड द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर इज नॉट अ मैटर ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिज. ये ऑप्शन था. ऑप्शन आंसर है दिसरेली. इन्होंने ये दिया था, बेंजामिन दिसरेली. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डीपर सिस्टमैटिक इश्यूज दैट लीड टू द ड्रामेटिक इवेंट्स लाइक द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर मूविंग बियॉन्ड सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस. उन्होंने ये कोट दिया था कि द राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर इज नॉट अ मैटर ऑफ ग्रीस्ड कार्टिरेजेस. किसके लिए एसोसिएटेड है? रिवोल्ट ऑफ 1857. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइटर हैज गिवन फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह सूरी. ऑप्शन 4, अब्बास खान सरवानी. ओके, तारीख शेरशाही इन्होंने लिखी है बुक. विच बुक? तारीख शेरशाही. ही इज ऑथर ऑफ तारीख शेरशाही. ओके, एंड is a crucial source for historians because it provides detailed account of the शेरशाह सूरी एडमिनिस्ट्रेशन, जो मिलिट्री, फिर गवर्नेंस एंड पब्लिक वर्क जो भी उन्होंने किया उसके बारे में ये सब में तारीख शेरशाही में लिखा है. ओके, देन वन मोर थिंग, we know Sher Shah Suri because of his well-known administration measures. Okay, and one more thing, he built the Grand Trunk Road. Okay, the Grand Trunk Road, one of the Asia's oldest and longest major road. Then law and order को भी उन्होंने establish किया था, and various welfare projects were also associated with him. He built somewhat 1700 sarais for the travelers, and currency was also standardized during his time. Next question. ओके, मैच करना है लिस्ट को. सो दिस आर द बुक्स एंड उनमें क्या दिया गया है ये बोलना है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. सो सबसे पहले ए इज कुमार संभवा. इट इज ऑप्शन 2. नरेट्स द स्टोरी ऑफ वेडिंग ऑफ शिव एंड पार्वती एंड द बर्थ ऑफ कुमार देयर सन. विक्रमोर्वशियम. इट इज वर्सियम. इट इज ऑप्शन 1. फेरी टेल ऑफ लव ऑफ सिलेशियल नेम विद द मॉर्टन. ऋतु संभार. It is option 4. Describe lucidly the graphically the 6 seasons. And Malvika Agnimitram, a harem drama and a court comedy of Shunga time. I think इतना बड़ा वीडियो बनाना काफ़ी डिफिकल्ट काम है. यस, सो ऋतु संभार, ऋतु बेसिकली सीजन्स को बोला जाता है, तो ऐसा आप कनेक्शन लगा सकते हैं. एंड मालविका अग्निमित्र वॉज द शुंगा किंग. पुष्यमित्र शुंगा के बाद में आते हैं अग्निमित्र, तो उससे भी आप एसोसिएट कर सकते हैं. डी का 3 एंड डी का 3 से देखिए ऑप्शन में. ओके, next question. The statement, the only foe of worthy of British steel was given by British magistrate about which leader of the revolt of 1857. अच्छा, only foe British steel, यह है बाबू कुंवर सिंह. ऑप्शन 4, मतलब जो ब्रिटिश को टक्कर दे सकते हैं, ब्रिटिश स्टील को जो टक्कर दे सकते हैं वो एक ही है, बाबू कुंवर सिंह. ही वॉज अ लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम बिहार and was highly respected by the British for his valor and fighting spirit. ओके, वो 80 ईयर्स के थे जब उन्होंने 1857 में ये रिवोल्ट किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुभाष चंद्र बोस आर करेक्ट. सो आवर करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन 3, दैट इज A, B, C and D. ओके,
सबसे पहले तो ही डिफीटेड पट्टाभी सितरमैया इन कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन एट त्रिपुरी कांग्रेस इन 1939. London thesis, the title of his speech delivered in absentia at London in 1933 at a political conference. He accompanied Deshabandhu Chittaranjan Das as his personal assistant to the Gaya Congress session of 1922. Indian Pilgrim is the title of his unfinished autobiography. We all know his unfinished autobiography, that is Indian Pilgrim. Question is repeated on this. Okay, Pattabhi Sitarmaiya was defeated by him in the Tripuri Congress 1939. उसी के बाद में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस स्टार्ट होते हैं एंड देयरफॉर ही लेफ्ट द कांग्रेस. फिर उसके बाद में क्वेश्चन ऑप्शन बी, लंडन थीसिस, द टाइटल ऑफ हिज स्पीच, इट इज ऑल्सो करेक्ट. देन ऑप्शन सी, ही वॉज पर्सनल असिस्टेंट टू चित्तरंजन दास इन द कांग्रेस गया सेशन 1922. ओके, ये भी करेक्ट है बिकॉज ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद चित्तरंजन दास. देन ऑप्शन डी, हिज अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी इंडियन पिलग्रिम. अनुशीलन समिति के मेंबर थे या नहीं, ऐसा कुछ डायरेक्टली एस्टैब्लिश नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इज नॉट करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 73. The total number of charter acts introduced by British in India were option 3, option 2, 3 only. ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1813, 3 चार्टर एक्ट. एक्चुअली 3 कैसे है? ओके, 1833, 1813, 1833 एंड 1853. 3 चार्टर एक्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश. टोटल एक्चुअली 5 आते हैं बट इन आवर आंसर की देर आर ओनली गिवन 3, तो हम भी वही 3 कंसिडर करेंगे जो काफ़ी फेमस चार्टर एक्ट्स है. 1813 मोनोपोली ओवर ट्रेड एंडेड बट चाय और चाइना, टी एंड चाइना वॉज रिमेन. देन 1833 में मोनोपोली पूरी कंप्लीट खत्म हो गई थी, चाय और चाइना पर से भी. फिर 1853 में क्राउन जुरिडिक्शन ओवर ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया वॉज अफर्म्ड. ओके, क्राउन रूल स्टार्ट होने वाला था एंड 20 more years ऑफ ट्रेड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. बेसिकली ना सारे जितने ये एक्ट्स है जो ब्रिटिश के एक्ट्स है उनको विथ द डेट, क्योंकि क्रोनोलॉजी में डेट भी अरेंज करनी पड़ती है, तो डेट वाइज भी एक बार देख लो एंड उनके जो मेन पॉइंट्स है वो भी एक बार चेक कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ए, बी एंड डी. टोबैको वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट अकबर्स कोर्ट इन 1604-05. टोबैको कौन इंट्रोड्यूस करते हैं? पोर्चुगीज. लहरी बंदर वॉज द चीफ सी पोर्ट ऑफ सिंध, फ्रॉम देयर कॉटन क्लोथ्स वे एक्सपोर्टेड टू पर्शियन. लहरी बंदर जो लाहौर के पास में एक पोर्ट था, वहाँ से पर्शियन गल्फ जो वेस्ट सेंट्रल एशिया है वहाँ पर जाता था हमारा कॉटन. ओके, then option D, according to Moreland there was as many as 13 famines in India between 1614 and 1616. कितने famines हुए हैं? 13. And the largest supply of salt bitter in 16th century came from Kashmir. हमने अभी पहले जो पहला पार्ट था उसमें देखा था कि कहाँ से आते हैं? बिहार से आते हैं. कश्मीर से आती है? नो. Therefore option E is wrong. फिर the port of Pipli was situated on Malabar coast. पिपली एक्चुअली ओडिशा में सुवर्ण रेखा जो रिवर है वहाँ पर है, उसके पास में है. सो मलाबार कोस्ट है? नो, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद मलाबार कोस्ट. मलाबार कोस्ट इज इन केरला. केरला का जो कोस्ट है उसे मलाबार बोलते हैं, बट इट इज़ इन ओडिशा, पिपली. देयरफॉर ई इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है. ठीक है, चलिए ऑप्शन 3 है करेक्ट आंसर. सबसे पहले तो बाग-ज़र-ए-अफशान, इट वॉज बाय बाबर. देन बुलंद दरवाज़ा अकबर, उनकी विक्ट्री के बाद में गुजरात वाले. मन मंदिर बाय राजा मान सिंह तोमर, ऑप्शन 4. एंड हौदे शमशी बाय शमशुद्दीन इल्तमिश. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. पट्टभी सितारमुलु, द प्रोटोगनिस्ट हु फास्टेड डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ सेपरेट आंध्रा, डाइड ऑन 15 दिसंबर 1952. 56 डेज के बाद में उनकी डेथ होती है. एंड ये क्वेश्चन ड्रॉप किया गया था बिकॉज पता नहीं क्यों ड्रॉप कर दिया था. ये ऑफिशियल आंसर की से ड्रॉप हो चुका है. ओके, उन्होंने 56 डेज के लिए हंगर स्ट्राइक की थी फॉर डिमांड ऑफ सेपरेट आंध्र प्रदेश स्टेट फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्यों हमारे भी ये बहुत आसपास में इसीलिए ड्रॉप कर दिया गया होगा. वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, मैच करना है. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. सो ये वर्ड्स है और उनके इंग्लिश में मीनिंग. ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. संधि का मतलब होता है ट्रिटी, वेरी बेसिक, ट्रिटी और पीस. एंड एक नहीं 4 है, इसलिए ये काफ़ी इजीली मैच भी किया जा सकता है. आसन यानी कि 1, न्यूट्रलिटी. देन ऑप्शन सी समस्वया, इट इज ऑप्शन 3, सीकिंग द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर. एंड ऑप्शन डी का है ऑप्शन 2, मेकिंग प्रिपरेशन फॉर अटैक विदाउट एक्चुअली डिक्लेयरिंग वॉर, यना. ठीक है, यना का मतलब होता है ऑप्शन 2, मेकिंग प्रिपरेशन फॉर अटैक. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज क्रोनोलॉजिकली. क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. सबसे पहले आता है ऑप्शन 78 का 2. ठीक है,
सबसे पहले मुजफ्फर कॉन्स्पिरेसी केस, देन कानपुर कॉन्स्पिरेसी, देन कम्स काकोरी, देन कम्स द मेरठ एंड लास्ट में आता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी. ओके, सो सबसे पहले हम डेट्स लिख लेंगे. मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस का होता है 1908, प्रफुल्ल चकी एंड खुदीराम बोस. देन कम्स द कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1924, नलिनी गुप्ता आपला M.N. रॉय, नलिनी गुप्ता 1924. देन कम्स द ऑप्शन सी काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925, बिस्मिल्ला दैट HRA वाले जो लीडर्स थे उससे एसोसिएटेड थे. देन कम्स ऑप्शन डी मेरठ कॉन्स्पिरेसी 1929 में होती है बट एक्चुअल डेट वॉज 1933. लाहौर कॉन्स्पिरेसी भगत सिंह वाली 1930. ओके, दिस आर द करेक्ट डेट्स, नोट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Herodotus, the father of history, wrote about option 1 Athens and Spartan war. ऑप्शन 1 इज एथेंस एंड स्पार्टियन वॉर्स के बारे में हेरोडोटस ने लिखा हुआ है. पेलोपोनेशियन जो प्लेस था, पेलोपोनेशियन वॉर बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टियन, उसके बारे में हेरोडोटस ने लिखा है. फादर ऑफ हिस्ट्री, द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन जो 5th century BC में थे. ही इज मोस्ट फेमस फॉर हिज वर्क द हिस्ट्रीज, अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ हिज इंक्वायरी into the origins and events of Greco-Persian wars as well as observation of cultures and places he encountered. Next, what do you understand by the term Iqta? Iqta is the land given in lieu of military and civil services. To whom? To the people. Iqta land grant system था that was used by various Islamic states. मुगल के टाइम पर भी काफ़ी फेमस था एंड जो सल्तनत टाइम था तब भी फेमस था. ठीक है, Iqta सिस्टम. एंड प्रॉपर्टी ग्रांट नहीं था बट ये क्या था, ये एक तरह का राइट था. इट वॉज द ग्रांट ऑफ द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड. ओके, उस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करो और खुद रखो, खुद की मिलिट्री और खुद के हॉर्सेज वगैरह को खुद बनाओ और फिर जब हमें ज़रूरत रहेगी तब हमें उसको देना पड़ेगा. दैट वॉज वॉट इक्ता सिस्टम. कौन बोलते थे? द किंग्स, द एम्परर्स यूज्ड टू से बिल्ड अप योर आर्मी, योर कैवलरी, infantry, everything by the revenue which will be generated from the land which we are providing. Next question. Brahmi is an ancient script. We all know Brahmi ancient script है that played a significant role in the development of writing in Southeast Asia, and one of the most ancestral script. Okay. Question number 82. Which of the following statements about Arya Samaj are correct? Option 3 ADNA. The first Anglo-Vedic college was established at Lahore. Then Lala Lajpat Rai was associated with Gurukul Kangri and Dayanand was born at Morbi. ठीक है, ये वाले स्टेटमेंट से करेक्ट है. स्वामी श्रद्धानंद वॉज गुरु ऑफ दयानंद. इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. दयानंद के गुरु का नाम क्या था? विराजनंदा. ओके, विराजनंदा वॉज द नेम ऑफ गुरु ऑफ दयानंद. देन ऑप्शन जो सी है सत्यार्थ प्रकाश ऑटोबायोग्राफी है. नो, सत्यार्थ प्रकाश इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी बट अ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म ट्रीटाइज रिटन बाय स्वामी दयानंद. ऑटोबायोग्राफी नहीं है बट एक रिलीजियस बुक है सत्यार्थ प्रकाश. ओके, बाकी के स्टेटमेंट्स करेक्ट है. कब इनका बर्थ कब हुआ था? 1824 में एट मोरबी, गुजरात. एंड ये जो फर्स्ट दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1884 इन लाहौर. ओके, एंड यस, लाला लाजपत राय वॉज एसोसिएटेड विद गुरुकुल कांगरी जो आर्य समाज ने एस्टैब्लिश किया था कब? 1902 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग्स द फॉलोइंग स्टार्टेड द जनरल भारत श्रमजीवी इन 1874? शशिपद बैनर्जी ने लिखी हुई है, नोबेल है, इन 1874. A journal that played a crucial role in addressing labor and socio-economic issues in India during the late 19th century. भारत श्रमजीवी, a platform to discuss and address these challenges जो लेबर से एसोसिएटेड. ओके, लीडर ऑफ ब्राह्मो समाज. शशिपद बैनर्जी कौन थे? लीडर ऑफ ब्राह्मो समाज. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड यस, वन मोर थिंग. शशिपद बैनर्जी इन्होंने और एक भारत श्रमजीवी समिति भी एस्टैब्लिश की थी कब? 1870 में. ओके, वर्कमैन्स फ्रेंड. भारत श्रमजीवी का मतलब क्या है? वर्कमैन्स फ्रेंड. ये जर्नल उन्होंने स्टार्ट की थी 1874 में बट उससे पहले श्रमजीवी समिति 1870 में एस्टैब्लिश की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अग्रहारा इज द विलेज गिवन एज अ गिफ्ट टू. अभी हमने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था तभी देखा था, इट वॉज गिवन टू ऑप्शन 3 ABDNE. कौन कौन थे ये? ब्राह्मिन्स ओनली, देन ट्रेडर्स, क्राफ्ट्स पर्सन एंड बार्बर्स. ओके, फॉरेन ट्रेवलर्स को नहीं दिया जाता था. अग्रहारा वॉज द लैंड ग्रांट गिवन इन द एंशिएंट टाइम. ओके, इट रेफर्स टू अ विलेज और लैंड that was given as a gift often by the kings or rulers for various purposes.
जो ब्राह्मण्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन एंड बार्बर्स को दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द carving for an interpretation of history is so deep-rooted that unless we have constructive outwork over the past, we are drawn either to mysticism or to cynicism. ये स्टेटमेंट किसने दिया है एंड इससे रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2 C, D and E. So it is opinion of F. Povic on the issue of interpretation of history quoted by E. H. Carr. It insists on a constructive outlook towards the past. E. H. Carr की बुक का नाम क्या था? बोलो What is history? एंड ये F. Povic का इशू ओपिनियन था अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, क्रेविंग फॉर एन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री इज सो डीप रूटेड दैट अनलेस वी हैव कंस्ट्रक्टिव आउटवर्क, मतलब कि कंस्ट्रक्टिव वे में देखना चाहिए पास्ट को, अदरवाइज या तो वो मिस्टिज्म जाएगा या तो सिनिक्सम में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86. द अर्थशास्त्र इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी अधिकरण्स एंड प्रकरण्स? 15 चैप्टर्स, 180 टॉपिक्स और वर्सेस सेक्शंस. ठीक है, 15 चैप्टर्स है या 15 बुक्स बोला जाता है एंड 180 टॉपिक्स और सेक्शंस. अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य. Next question. The union of these men with Congress is the union of deceased limb to a healthy body, and only remedy is surgical severance if the Congress is to be saved from the death by blood poisoning. It is option 4. ये statement दिया था H.A. वाडिया ने. Feroz Shah Mehta expressed the same opinion. It is a reflection on the extremist. Okay. Union of these men. So बॉम्बे क्रॉनिकल, ये H.A. वाडिया ने एडिटर थे उसके बॉम्बे क्रॉनिकल के, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था, लिखा था. एंड ये किसका ओपिनियन था? फिरोज शाह मेहता, हु वाज द ओनर ऑफ बॉम्बे क्रॉनिकल्स. ओके, एंड देयरफॉर ही शेयर्ड द सेम व्यू. इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑन द एक्सट्रीमिस्ट, मतलब कि जो एक्सट्रीमिस्ट, ये फिरोज शाह मेहता जो थे मॉडरेट्स थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्हें क्या बोला गया था? दिस इज स्लिम टू अ हेल्दी बॉडी, मतलब कि खराब है ये एक हेल्दी बॉडी के लिए. एंड ओनली रेमेडी सर्जिकल सेवरेंस, यानी कि सर्जरी कर निकाल देना चाहिए कांग्रेस से. इफ़ यू हैव टू सेव द कांग्रेस बाय ब्लड पॉइजनिंग, मतलब कुछ अगर ऑर्गन खराब होता है तो उससे पॉइजन हो जाता है ना बॉडी में, वैसे ही. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट तर्केश्वर सत्याग्रह? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन 4, B, C and D. It was a religious reform movement. Swami Vishwananda and Swami Satchidananda formed the Mahavir Dal for the Satyagraha, and Chittaranjan Das was also associated with the Satyagraha. कोई भी सत्याग्रह ब्रिटिश सपोर्ट करेगी क्या? नो, दे वोंट. इट वॉज लेड बाय विनोबा भावे? नो. विनोबा भावे ने कौन सा सत्याग्रह किया था? भूदान सत्याग्रह, या भूदान मूवमेंट से एसोसिएटेड है. ठीक है, तर्केश्वर सत्याग्रह वॉज अ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन इंडिया इन 1924 में हुआ था ये, led by Swami Vishwananda and Swami Satchidananda, who were inspired by Mahatma Gandhi's philosophy of Satyagraha. They aimed at protesting the corrupt practices of Mahant of the Tarkeshwar temple in Hooghly district of West Bengal. Okay. Next question. Question number 90. These are the very important Congress sessions and उनके प्रेसिडेंट कौन थे ये पूछा गया है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. सबसे पहले तो बंकीपुर कांग्रेस सेशन 1912 के लीडर थे रघुनाथ नरसिया मुदोलकर. ऑप्शन 3. देन कोलकाता कांग्रेस सेशन दादाभाई नौरोजी के अंडर हुआ था. अहमदाबाद कांग्रेस सेशन 1921 हकीम अजमल खान एंड एनी बेसेंट 1917 स्पेशल सेशन. ओके, स्पेशल सेशन हुआ था अंडर एनी बेसेंट एट कोलकाता एंड शी वॉज फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोजिशन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन. येस, वन मोर थिंग हम देख लेते हैं बंकीपुर वाला क्यों है. बंकीपुर वाला वॉज 1912. देन कलकत्ता कांग्रेस सेशन जो दादाभाई नौरोजी के टाइम पर हुआ था, सो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था बिकॉज स्वदेशी मूवमेंट की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी. देयरफॉर उस टाइम पर स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, इसीलिए इंपॉर्टेंट था. अहमदाबाद कांग्रेस सेशन हकीम अजमल खान नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस टाइम पर चल रहा था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 90. विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अबुल फजल? So correct answer is option 1, A, B, D and E. Abul Fazl was the second son of Sheikh Mubarak. He wrote the Akbarnama is monumental work written by Abul Fazl. Then D, Abul Fazl was murdered by Bir Singh Bundela on behest of Prince Salim. Prince Salim यानी जहांगीर. Abul Fazl wrote a preface to the Persian translation of the Mahabharata. Okay? जो सी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है. उन्होंने नहीं ट्रांसलेट किया था, पार्ट ऑफ मुआजम उल बुल्दून जियोग्राफिकल डिक्शनरी. बाकी के स्टेटमेंट्स करेक्ट है. Son of Sheikh Mubarak, a prominent scholar and advisor in the court of Akbar. Akbarnama, we all know, Abul Fazl ने लिखी हुई बुक है and was murdered by Bir Singh Bundela on the order of Prince Salim, जहांगीर के ऑर्डर पर, who was not pleased with Abul Fazl's influence over his father, Emperor Akbar.
ओके. एंड अबुल फजल रोट अ प्रीफेस फॉर रमजानामा ओके, जो कि पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत का. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाला जो है उस पर बेस्ड है ये वाला पैसेज. एंड आंसर्स यू वोंट फाइंड डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज, बट अगर आपको थोड़ा भी पता होगा तो यू कैन सॉल्व दिस. What were not the consequences of this war? The Marathas lost their support in North India. The Marathas lost heavily in men, money and military power. The Peshwa Bajirao too died soon after hearing the news of the terrible disaster. It paved way of Ahmad Shah Abdali for carve a kingdom in North India. तो जो ऑप्शन 4 है वो रॉन्ग है, बिकॉज अहमद शाह अब्दाली ने नहीं एस्टैब्लिश किया था अपना किंगडम. पता नहीं आज ओके, उन्होंने एस्टैब्लिश नहीं किया था अपना किंगडम एंड ही वॉज वे अवे फ्रॉम. एक्चुअली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मैन, टाइम एंड मनी, क्योंकि दोनों को भी कुछ एडवांटेज नहीं हुआ था. मराठास का सपोर्ट तो गया ही था, देन मराठास लॉस्ट हेविली, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी. एंड बालाजी राव जो बाजीराव के बेटे थे उनकी तो डेथ हो गई थी ये सुनकर ही कि ये लोग हार गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वॉज not one of the reasons for defeat of Marathas? All Muslim leaders of the north combined against the Maratha Hindu rulers except Surajmal Jat did not join and supported Bhau. Marathas fall short in fighting and doing glorious deeds. Difference about plan of camping among Marathas. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन 3. The Marathas fall short in fighting and doing glorious deeds. ये रॉन्ग रीजन है, बिकॉज वो पीछे नहीं हटे थे एंड दे डाइड लाइक मार्टियर्स, वीरों की जैसे उनकी मौत हुई थी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The following passage refers about which important battle? It is Battle of Panipat, third Battle of Panipat. Okay. And yes, one more thing. 92 drop था, जो क्वेश्चन नंबर 92 था वो ड्रॉप था इसके पहले वाला. This question was dropped. Okay. By NTA. ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था क्योंकि ऐसा कुछ पैसेज में डायरेक्टली दिया नहीं था, इसीलिए ये ड्रॉप हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में ही है. ओके. जो कब हुआ था? 1761 में हुआ था. मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली अफगान किंग. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन आई विटनेस ऑफ दिस वॉर? काशीराज पंडित. ऑप्शन 2 काशीराज पंडित, हु वॉज कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन एट दैट टाइम, वो थे इसके आई विटनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज कमांडर इन चीफ इन दिस बैटल? ये थे सदाशिवराव भाऊ. यहाँ पर देखिए, एक्चुअल में बालाजी ने अपने बेटे जो नारायण राव थे उन्हें आगे किया था, बट सॉरी विश्वास राव को आगे किया था, बट एक्चुअल कमांड जो थी वो थी सदाशिवराव भाऊ के अंदर. ओके. ओके. नाउ अगेन अनदर पैसेज. हु इज क्रिटिकल ऑफ केयरलेस अकाउंट्स ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन? तो यहाँ पर इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे आंसर्स. मेजिनी इन अ क्रिटिकल आर्टिकल ऑन केयरलेस फ्रेंच रिवोल्यूशन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 मेजिनी. ओके. Mazzini is the correct answer. Next question. Which is incorrect about history writing of the revolt? Which is incorrect? Option 2. The English authors have given a correct account of the revolt. ये भी यहीं पर है, यहाँ पर जो है ना 1857 के बारे में है ये जो रिवोल्ट हुआ था, एंड यहीं पर है, यहीं पर है, आप देख सकते हो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which amongst the following was the moving cause of the revolt? Which was the moving cause of the revolt? So moving cause of the revolt was greased cartridges. ठीक है. Greased cartridges were the moving cause of the revolt. Next question. See यहीं पर है ये भी. Question number 99. Who gave the call to Hindus and Muslims to rise together for Swaraj? ये कॉल किसने दिया था? बहादुर शाह जफर, who was the emperor at that time. उन्होंने दिया था, मुगल एम्पर, to unite Hindus and Muslims to unite. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज दीन दीन मीन? टिक द करेक्ट ऑप्शन. दीन दीन का मतलब क्या था? विच रोज टू प्रोटेक्ट रिलीजन व्हेन देयर वाज एविडेंट साइंस ऑफ कनिंग, डेंजरस एंड डिसरप्टिव अटैक ऑन रिलीजन डियरर देन लाइफ. सो दीन दीन का मतलब क्या था? टू प्रोटेक्शन ऑफ वंस ओन रिलीजन, खुद के धर्म का रक्षण करना. ओके. विद दिस वी कंक्लूड आवर टुडेज वीडियो. द वीडियो इज क्वाइट लॉन्ग, आई नो, बट येट इट इज वेरी बेनिफिशियल ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.